Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman. Again, we are in Gita and we are still in chapter 3, going extremely slow because many a times it contradicts with what we are doing and it causes a dilemma in us. So this thought is, it is nice to actually internalize and then slowly move on. Last week we just introduced superficially what verses 13 to 16 of chapter 3 are saying. Today we'll delve deeper, and next week what we'll do is we'll try to start chanting from verse 1 to 16 and have a gist of what we have done so far, because from verse number 17 the topic will change a bit. Right? Abhi from verse number 9 to 16, we have been harping on one thing, कर्म as यज्ञ, right? कि हमें कर्म तो करना ही है, पर कर्म को यज्ञ की तरह करना है, कर्म से छुटकारा नहीं है, right? So that is the gist of what we have been doing. Before that, what we tried to understand is what is karma, right? From verse number 1 onwards till verse number 8, we established what actually is karma, right? And now after verse number 16, we are going to go on and see who specifically is free from the shackles of karma, who can actually operate in a drishta mode. I'm so looking forward to going there, but as of now, and right now when he starts, he is talking to Sri Arjun, and somewhere he is bringing Ma Kunti in the picture, Sri Krishna, and he's saying that Ma Kunti sacrificed a lot, but she did not leave the path of karma, right? Her life was a full circle of sacrifices. So a reminder that you are her son, right? Don't forget that. And that is why it is said that parents play a very important role in shaping the child and retaining the child's character in the midst of so many influences that are being thrown at him. Aajkal, there is so much of information flowing, so much of do's and don'ts, so much of people talking about their perspective that it becomes difficult. So even though this was not the case before, in Arjun's time, he is shifting Arjun's focus towards his mother, Kunti, Parth, Sunu, right? While he's talking, I still remember that many a times when we listen to the athletes, there was this athlete who was in a race, and it just so happened that the person who was ahead of him, who was about to win, due to some reason faltered. Not faltered in the sense, he just fell, and he was very close to the winning line, and he was genuinely going to be the winner. At that time, this athlete who was in the second number did not take advantage of the situation. He stopped. He said this was the rightful winner. He had it in him to win the race. I've always been a bit behind him. No matter what the situation, I'm not going to cross the line without him. And what he did was, he lifted him up and slowly, with him crossing the line first, he entered. And later on during the interviews, he was asked, why did you do that? Why didn't you just cross the line and win? He said that was the right thing to do. And had I done, just leave him, cross the line and won, how would I face my mother? How would I face my mother? Always think now, what would my mother say? How did my mother contribute? How would she, what would she think of me? It is very important. And over here also, Shri Krishna is saying, Arjun, माँ कुंती के बारे में सोचो, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, right? So a reminder that you are the son of Kunti, Ma Kunti,
has been used. So in Gita also, one more thing that we should and we will bring to the notice from now on is there are different names Sri Krishna calls out when he is talking to Sri Arjun, right? So the names that Sri Arjun is being signified have a meaning. हर जगह अलग अलग नाम से अर्जुन को संबोधित किया जाता है, right? So now let's enter slowly and steadily. We will just open it. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. श्रीभगवानुवाच यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पञ्चन्यात्म कारणात्. Right? So over here, it is verse number 13. The explanation goes as such. यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, राइट? परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अथवा सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं, राइट? Superficially we understood it that everything we do, everything we have has to be offered first as a yagna and then हमें उसको लेना चाहिए. So whatever action is being taken and whatever fruit we get of that action, it has to be offered and then partaken. तो यहाँ पे Ram Sukdas ji puts it very beautifully. He does not only tell us कि yes, this is the way forward. He is going to explain the benefits of living like this. When our entire karma is done for somebody else, our entire effort is for somebody else, and whatever is left after offering is used for the self. है ना, जीवन निर्वाह करने के लिए तो चाहिए ही हमें, राइट? तो ओवर हियर द ब्यूटिफुल थिंग इज विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है. व्हेन वी फॉलो दिस वर्स टू द एंड, यू नो, एज इट इज, यज्ञ शेष, लाइक योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य, Whatever is यज्ञ में ऑफर करने के बाद में जो शेष बचा वो मनुष्य श्रेष्ठ होता है. दैट मनुष्य इज सुपीरियर एंड संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है. इट इज सो इजी टू गेट फ्री ऑफ ऑल द सिंस when, of course, we don't have the karta bhav because the Lord is doing it, but we do not even say that we have any right to the fruit, right? It is also an offering to the one who is doing it, that is the Lord, and to his different kritiya, all everybody else. So when this kind of a approach is taken in life, what happens? Only two things are left: Yog and Samta. Now, Yog can be taken as union with the Lord, and Samta is where there is no two. Mine and thine disappears. Me and you disappears. मेरा and तेरा disappears. तो क्या रह जाता है? यही दो चीजें रह जाती हैं. You are always connected with the Lord when you are offering everything to the Lord and operating in yagna spirit. And दूसरी चीज क्या रह जाती है? समता, समभाव आ जाता है कि सारा संसार तो प्रभु ही है, सब मेरे ही हैं, राइट? तो अगर हम किसी के लिए कर भी रहे हैं तो हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे, राइट? जो सी आजकल क्या हो गया, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही गिव्स चैरिटी, बट दैट इज ह्यूमन नेचर. ही हैज टू बी गुड, ही हैज टू डू इट. सो दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मनुष्य. तब बात करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि जीवन ऐसे ही जीना है. किंतु
द मिनट वी डू समथिंग रॉन्ग वो चर्चा का विषय होना चाहिए, राइट? तो यज्ञ में जीवन तो होना ही चाहिए. So what, and if we are living like this, only two things remain: the connection with the Lord, योग, right? जुड़ जाते हैं हम योग भगवान से, and समता, equanimity comes, and nothing else is remaining. And then what happens? Then we are freed from 3 types of karma. हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि जो कर दिया है, संचित है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, पर प्रभु बोल रहे हैं कि यू कैन बी फ्रीड टोटली बाय ऑल द कर्म्स डन इन द पास्ट ऑल्सो इफ यू स्टार्ट ऑपरेटिंग लाइक दिस, राइट? जब आप लिप्त नहीं होते, आपने देखा है अगर मधुमक्खी शी मेक्स द हनी, राइट, बट व्हाट इफ इट शी गेट्स स्टक इन द हनी, वो निकल ही नहीं पाएगी, राइट? वो भिन्न भिन्नताएं बनाती रहेगी, उसके पूरे पंख वगैरह सब उसमें लिप्त हो जाएंगे, मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड. इट विल गेट सो स्टिकी दैट हनी दैट शी हैज मेड, इफ शी डिसाइड्स टू टेक अ डिप इन इट लाइक वी ऑलवेज डू, कि हाँ वी आर taking a dip in what we have done, I am basking in the glory of all my effort, and if I'm splurging it on myself, what is wrong? So if the madhumakki starts doing that, what will happen? She'll get stuck in the madhu and she'll die. Always remember this example of this honey and the bee, right? So 3 types of karma से हमारी मुक्ति हो जाएगी. What is it? उसके संपूर्ण संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म विलीन हो जाते हैं. What are the 3 types of कर्म? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म and क्रियामान कर्म will get dissolved. It's so easy. Is it possible? ये कैसे होगा? Now Ram Sukdas ji is answering. He is not delving on what the verse is saying because it is very straightforward, right? There is no need to talk much about it. He is saying what will happen if you live like this. And what are the 3 types of karma? Sanchit karma, prarabdh karma and kriyaman karma. So what happens is, kamna na rehne se, when I have no desire left, right? Kamna na rehne se, sanchit karma vileen ho jate hain. When there is no desire left, somehow those sanchit karma get dissolved. धीरे धीरे they'll get finished. And जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार तो, अनुकूल तो, प्रतिकूल तो सिचुएशन होती रहेंगी. प्रारब्ध is whatever we have done in the past. As we sow, so shall we reap. And our situation is going to be sometimes धूप, कभी छाव, कभी अच्छे कभी बुरे दिन आते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं. We are not going to get freed from it, right? वो तो होगा. But what happens? We will not get agitated by it. When we start becoming desireless, when we are acting in yagna spirit, when we accept everything as a situation, although bad and good will come, problem क्या हो जाती है? Many a times people are so devoted and then one fine day the world comes crashing down. And then they say, I don't believe in God anymore. भगवान ने क्या किया? आप अपने कर्म का भोग रहे हो, वो तो दृष्टा है, वो तो बैठा है, right? If your world is coming crashing down, it is because of your प्रारब्ध. प्रभु ने आपको पनिश थोड़ी करा है, और वो प्रारब्ध आपका मिटा नहीं रहा है, आप ही को अपना प्रारब्ध मिटाना है, right? तो संचित कर्म तो गए when you become desireless, and परिस्थिति आती है और जाती है, situations will come and go, पर उसमें वह सुखी और दुखी नहीं होता, right? Situations will come and go, but you are not overly happy or overly sad. Yes, it is possible, hota hai, right? It is not that we become heartless when this happens, but the acceptance that कभी धूप है, कभी छाव है, कभी ऊपर कभी नीचे, आज जो नीचे गया वो ऊपर आएगा और जो बहुत ऊपर पहुंचा है वो गिरेगा जरूर. इस सृष्टि का चक्र चलता रहेगा. सो दुख नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति तक उस पर कोई असर नहीं होता, उस परिस्थिति का असर होना ही बंद हो जाता है. संभाव हमने बोला, सम हमने बाहर की दृष्टि से देखा और अंदर की दृष्टि से भी समता आ जाती है. यू आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड एंड देयर इज नो अपहीवल, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, राइट? नो मैटर व्हाट द सिचुएशन.
एंड देन व्हाट हैपेंस, यहां से प्रारब्ध कर्म का विलीन होना शुरू हो जाता है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वी आर नॉट इनकरिंग एनी न्यू कर्म. When we are in a bad situation and we cry foul, when we are very ill, it is hurting and we weep and cry, हम नए कर्म बांधते जाते हैं. राइट राइट, एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग, अब और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. पर जब पीछे हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, हम खुद एक दृष्टा बन जाते हैं, प्रभु के साथ जाके बैठ जाते हैं कि चलो आप भी देखो शो, मैं भी देखती हूँ. जब त्राही नहीं निकलती ना मन से, त्राही त्राही, माई गॉड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज माई लाइफ लाइक दिस, व्हाट हैव आई डन टू गेट दिस, देन वी डोंट इनकर न्यू कर्मास. व्हेन वी डोंट कर्स समबडी फॉर बीइंग मीन टू अस, वी डोंट इनकर न्यू कर्मास. नहीं तो हमारा उनके साथ बंधन चलता रहेगा. he does something, I do something, he does something, there will be some unfinished business, we'll meet that person again. नहीं मिलना. शांत, चिल्लाना है चिल्ला लो, प्रभु पहले पूर्व जन्म के कर्म होंगे, मैं आपको माफ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ. नो कर्म बंधन whatsoever. सो राम सुखदास जी कह रहे हैं जब जीवन यज्ञ बनता है, बाहर और भीतर समता आ जाती है. राइट, एंड दो कर्म, एंड देन व्हाट इज ही सेइंग, फल इच्छा भी खत्म हो जाती है. कहीं ना कहीं when the desire ends and when we are not acting for the self, when you're selfless, the anxiety for the fruit also dissolves somehow. It happens. And जब फल इच्छा खत्म हो जाती है, फल इच्छा ना रहने से क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं. Whatever we are doing, they become akarma. The action becomes an action. When there is no desire for the fruit, no desire for a simple appreciation. खाना बनाया, अच्छा बना क्या, अच्छा लगा ना, Are you happy? नहीं, आपने खाना बनाया, खिलाया, आपने कर्म किया without any इच्छा for appreciation, तो that action becomes inaction. खत्म. It is very simple. अरे हमने आपके लिए इतना किया, आपने पलट के हमारा धन्यवाद करना तो दूर रहा, हम आए और आप हमसे मिले भी नहीं, आपने कर्म बंधन बांध लिया. नहीं तो नेकी कर कुएं में डाल. निमित्त, हम निमित्त है, हमने किसी के लिए कुछ नहीं करा. एक कठपुतली की क्या हैसियत है कि वो कुछ कर सके. राइट, सो ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ कर्म गेट डिसॉल्व्ड. और क्या चाहिए फिर, तपस्या ही नहीं करनी. एंड द थिंग अबाउट कर्म योग इज इट इज वेरी इजी टू गिव एवरीथिंग बिकॉज नथिंग इज योर्स. आप कुछ लेके तो आए नहीं थे. वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज बाय वट एवर हैज बीन गिवन टू यू बाय एवरीथिंग अराउंड यू. तेरा तुझको अर्पण. When I came, I was empty-handed. When I'll go, I'll be empty-handed. Whatever karma is happening is because of whatever is around me. So giving the fruit to whatever has contributed to it, why should it bother me so much? जब मेरा है ही नहीं कुछ, तो फिर क्यों देने में इतनी तकलीफ. वेरी इजी. अगर हम ये सोच लें, अब विचार करें ना, बहुत प्यार से लिखते हैं, अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है. हम लोग सोचते हैं ना कि ओके, सो दिस इज हाउ वी फ्री. नाउ ही इज सेइंग फाइन, यू आर लिविंग लाइक दिस, दिस इज द रिजल्ट. नाउ यू विल से बट हाउ, व्हाट, अब बंधन तोड़े कैसे. सो देन यू हैव टू कम टू द कॉज ऑफ द बंधन, राइट, कॉज ऑफ द शैकल्स, कॉज ऑफ बीइंग टाइड डाउन. ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है. When, what is it? What is binding us? When we start dictating, this should happen and this should not happen. This is how it should happen. This should not have happened. When we start dictating things in our mind, unfortunately, no matter कितना भी हम कर ले ना, man can propose all he wants. God disposes. तो propose करना ही बंद कर दो. Simple. Sthit. Just be. So, why are we being tied? Because we are proposing again and again. But when we know our proposal is not going to work, he's going to dispose. आप कर्म करो ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, छोड़ दो. जैसा हो रहा है वैसा ही होना चाहिए. Whatever is happening the way it is supposed to happen. What happens when you start thinking like that? You're freed from karma. When you're freed from, your karma becomes a karma,
and you're not bound by the shackles of birth and death. सब कुछ like we roast the मूंग. मूंग को अगर आप रोस्ट कर देते हैं तो अंकुरित नहीं होता. दिस इज रोस्टिंग ऑफ द मूंग. हमने रोस्ट कर लिया अच्छा से. अब वो अंकुरित नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वापस इस झंझाल में आना ही नहीं पड़ेगा. किसको आना है? आई डू नॉट नो. किसी को आना हो तो, पर मुझे तो नहीं आना. राइट? साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त, व्हाट वी सेड, राइट? आरंभ, बिगिनिंग, एंड द एंड होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न. सी, देयर इज अ बिगिनिंग टू एन एक्शन, it will come to an end also. So how can the result be everlasting? That is what he is trying to say. कि साधक को इस बात की तरफ ख्याल रखना चाहिए, करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे. Right? Whatever is created, something, an action starts, action ends. So the result cannot be everlasting. It is going to get over once. No matter how high you go, you win the Nobel Prize, it's going to fade away. The joy is going to fade away. एक दिन लोगों को याद भी नहीं रहेगा. मुझे तो पता ही नहीं कि बॉम्बे का घंटाघर किसने बनाया था. किसी ने बनाया होगा. Who made the pyramids? किसको पता है? Because there was a beginning to the action, there is an end to the action. The result is also going to be not permanent. It's going to be transient. And once we start thinking like this, we will not look for everlasting joy from this transient world and from this transient actions. Simple. So he is beautifully telling us कि जीवन को जब आप यज्ञ बना लेते हैं, दूसरों के लिए जीने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं, फल पे भी अपना हक नहीं रखते हैं, जो शेष बच जाए थोड़ा सा, उससे आप अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, तो योग हो जाता है और समता आ जाती है भीतर और बाहर. योग इज कनेक्शन टू द लॉर्ड. वंस यू आर इन दैट स्टेट, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कर्म, द वंस विच हैव बीन प्रीवियसली इनकर्ड, द वंस विच यू माइट इनकर, एंड द वंस विच आर ऑलरेडी, कहते हैं ना, संचित कर्म आर द कर्म इन द क्विवर, राइट? एंड देन प्रारब्ध इज, इट्स ऑलरेडी ऑन द बो, वो तो निकलेगा ही, पर आगामी कर्म होता है जो अब होने वाला है. तो ये तीनों विल बी फिनिश्ड. And when you accept everything with a calm state, saying everything is happening the way it is, I do not think it should have been like this or like that, there is going to be eternal peace. That peace comes from acceptance, not that joy and peace is not going to come from the work which has a beginning and the end. Because whatever is the result of something which comes from beginning and the end will also have a end. And this knowledge sinks in. It is very beautiful. And then he says, Manushya Yoni. And हम बार बार बोलते हैं, in fact all our scriptures keep telling us, मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है. Be very careful, don't waste it. एक एक क्षण, कहते हैं ना, क्षण का भी आप थोड़ा कर लीजिए. इतना जरूरी है कि हम कैसे इसको व्यर्थ गवा सकते हैं. क्या हम अपने हीरे के हार को बाहर दरवाजे पे रख के आ जाएंगे कि चलो यहां रख देता हूं, लॉकर में क्यों रखने की जरूरत है? नहीं भाई, हीरे का हार है, इसको तो घर में भी नहीं, हम लॉकर में रख के आएंगे. और जो अनमोल जीवन ये हीरे जैसा मिला है, उसका क्या? उसको तो हम ऐसे ही फेंकते रहते हैं, इधर से उधर समय बर्बाद करते रहते हैं. सो ब्यूटिफुली राम सुखदास जी कहते हैं, सी ही हैज लिव्ड इट. व्हेन ही इज टेलिंग अस, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज अनुभूति. ये एक ऐसे प्राणी है जिनने एक अपनी फोटो नहीं छोड़ी, अपनी संस्था नहीं बनाई, और जब ये विलीन हुए थे ना, जब प्रभु में लीन हो गए थे, तब माँ गंगा कहते हैं कि जो भी बचा कुचा था उनका, वो भी लेके चली गई थी. सो टुडे इफ यू वांट टू से कि हु वाज ही, हाउ वाज ही, यस यू कैन हियर हिज वॉइस, जिनने भी रिकॉर्ड करी है, दैट आल्सो वेरी बेसिक. यू वुड नॉट फाइंड एनी रिमेन्स. सो व्हेन ही इज सेइंग मनुष्य योनि एक ऐसी अद्भुत खेत है. इट इज लाइक, खेत होता है ना जिसमें फसल होती है, इट्स अ फील्ड वेयर द क्रॉप्स आर गोइंग टू कम. सो इट इज सच अ यूनिक फील्ड. ही इज सेइंग मनुष्य जीवन,
जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है या दुख देता है. थिंक ऑफ इट. बिकॉज इसी जन्म में देवता योनि में वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट. एंड जानवर की योनि में भी कहते हैं, देखिए मुझे पता नहीं है, कि वहां पे भी इतना विवेक नहीं होता होगा एक दो में, बहुत कम में, पर मनुष्यों में बहुत विवेक होना चाहिए, राइट. सो व्हेन वी हैव दिस जन्म, मनुष्य जन्म, which has this beautiful field that we can actually sow and then reap the benefit for many births to come. पाप बोओगे तो वैसा आपको आगे मिलेगा, पुण्य बोओगे तो वैसा मिलेगा. Then what is stopping us from plowing our field and sowing पुण्य? क्या रोक रहा है हमें? हाँ, तो here he explains, वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है. And this is something that touched my heart, and that is true. It can be the last of our jन्म्स, कि हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त कर लें, हमें वापस जन्म ना लेना पड़े. और it can be a beginning of that 84 लाख योनियों में जिसमें हमें भटकना पड़ेगा. Right? It can be an end and it can be a start. It is your choice. You want to make it an end? कि बस I am not coming back and I'm going to live my life like this so that this becomes my last birth. Or are we going to live our lives like this कि this becomes my first birth and उसके बाद में योनियों, one species after another species after another species. The soul gets tired, but there is no rest. We don't have any memory. That's why we are so relaxed. अगर कभी याद आ जाए ना तो रूह कांप जाएगी. And then you will say, Prabhu, let this be my अंतिम birth, not my first birth. Let this not be my first birth. And then he says, सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः ही रुक जाता है. Make that दृढ़ निश्चय. Prioritize the Lord, right? See, we always talk about priorities. Unless and until we have a priority, we are going to reach nowhere. एक निश्चय तो होना चाहिए ना. हम बच्चों को समझाते हैं अपने कि decide. Where do you want to give your time? What is your focus? What is your aim? What is your goal? हमारा? Why don't we talk to ourselves like that? And the day we make Lord our priority, कि ठीक है सब कुछ तो करना ही है. आज अर्जुन को ये नहीं बोल रहे कि तुम रण छोड़ के भाग जाओ और छुप जाओ और तुम्हें 5 गांवों की भी जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत महान हो. नहीं, ही इज गिविंग अस ऑल दिस ज्ञान व्हाइल टेलिंग अस कि कर्म करो. अगर क्लास में आए हो तो घर वालों को खाना खिला के आए हो ना, या ऐसे ही आके बैठ गए हो, मत आओ. फिनिश योर ड्यूटी एंड देन कम. नहीं, नई ड्यूटी हो रही तो मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो अपना कर्म और घर वालों की सेवा ये समझ के कर रहा है कि सब में भगवान है, तो उसको इस क्लास की जरूरत ही नहीं, राइट. सो सब छोड़ के मत आओ. तो अर्जुन को भी बोल रहे, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग. कर्म श्रेष्ठ है, कर्म कैसे करना है सीखो, बस इतना ही. तो इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है. हम लोग सोचते हैं ना, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग फॉर एनीबडी एल्स. ये राजसिक जीवन होता है, where we earn and we live as per our earning lavishly. I'm not hurting anybody, because when you start hurting somebody, then it becomes a tamasic life. कि you are jealous and not only are you trying to raise yourself, but you are trying to bring somebody else down. That is तो वर्जित है. We all know it is wrong. But what happens is the wrong and right, the line between wrong and right gets blurred when we say I'm not causing harm to anybody, right? I'm spending my effort on myself. So where is it wrong? यहाँ पे कह रहे हैं कि वो राजसिक जीवन है. That is a choice you are making. But जब प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे चलना है ना, तो सात्विक जीवन अपनाना पड़ेगा. And सात्विक जीवन में कर्म अलग तरह से होता है. When your action becomes a yagna. And that we have been harping on for so long, कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है. हम वापस उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो हम घूमते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसका इतना अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है ना
कि हम इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इसको उतार नहीं पा रहे हैं, राइट। तो इसमें कहते हैं इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, राइट। प्रत्युत हाँ राक्षसपना है। ही इज यूजिंग वेरी हार्श वर्ड्स। असुरपना है, मतलब अपने सुख के लिए कर्म करना राक्षसपना है, असुरपना है, राइट। सो दैट मीन्स यू आर व्हेन यू आर जस्ट taking care of yourself and your benefits and your luxury and your joy, then it is a rakshas pravritti, asuri pravritti. It is like you're a demon, right? वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। The true definition of human, कहते हैं ना, मनुष्य तो मनुष्य बन जा, मनोर्भव, because that is the first thing that they are saying. The entire journey of our scriptures is to make us human again. हम अपनी कहते हैं humans have lost their humanity, खत्म हो गया। मनुष्यों में मनुष्यपना बचा ही नहीं है, because we really have been conditioned in a certain manner. So over here is not mixing words. इनको क्या करना है, right? वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं। अपने सुख के लिए मतलब इट इज वेरी वेरी ड्राई, वेरी ऑन द फेस, इट इज लाइक हैमर्ड, इट माइट बी लाइक ऐसे थोड़ी होता है, जो भी है, बट दिस इज व्हाट इट इज। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। दैट इज ट्रू। थिंक अबाउट इट। हम इतनी मेहनत करते हैं खुद के सुख के लिए ना, क्या हम सुखी हैं इन द ट्रू सेंस? आर वी ब्लिसफुल विद इन? सोचिए। पता नहीं, ब्लिसफुल तो वो फकीर लगता है, कहते हैं ना, एक दिस इज दिस ब्यूटिफुल भजन दैट कम्स, मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, नाम फकीरी में। सो दैट इज व्हाट ही सेइंग, पाप का ही भक्षण कर रहे हो, एंड इवन दो यू आर नॉट हार्मिंग एनीबॉडी, करते हैं, अर्थात सदा दुख में ही रहते हैं, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुख ही हो जाते हैं। वेरी सिंपली पुट, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द वर्ड्स, there is no sugar coating, because this is what it is, right? कहते हैं ना, गीता as it is, जो प्रभु बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं अर्जुन को, and that is what is यज्ञ, right? So again we'll just read the Hindi meaning. यज्ञ शेष, योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से, यज्ञ शेष is the remain of a यज्ञ, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। This is what he is saying. And the next verse is verse number 14-15. We'll go to the Hindi version for now. संपूर्ण प्राणी, and these we are taking together. संपूर्ण प्राणी है ना, अन्न से उत्पन्न होता है। I've drawn a chart. Maybe if you would want to bring a pencil and a paper, it'll be easy to understand this, because we talked about it in depth last time, but let's talk about it again. संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होते हैं, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, वेद से, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। सो ब्यूटिफुल, दे हैव टोल्ड अस वेयर टू फाइंड द लॉर्ड, राइट? सो लेट्स सी, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फूड. Okay, there is a cycle. So we will go backwards now. They have gone forward. We'll start from Paramatma. From Paramatma comes Akshar Brahm, right? From Brahm comes Ved, Akshar Brahm.
फ्रॉम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी ले सकते हो आप. You can, in certain explanation, it's Brahmaji who's the creator also. Akshar Brahm can be the words also. पर परमात्मा से ही अक्षर ब्रह्म निकलता है. फ्रॉम अक्षर ब्रह्म क्या निकलते हैं? वेद, है ना. वेद से निकलता है कर्मों का ज्ञान कि कैसे करने चाहिए नॉर्मली. एंड वेद में एवरीथिंग कम्स, आर श्रुति, स्मृतिज, आर इतिहास, आर पुराण्स. दे आर टॉकिंग अबाउट, कहते हैं ना, नाउअडेज आर कॉन्शियस इज ऑल्सो कंडीशनड. कहीं कहते हैं ना अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज भी कंडीशन हो गई है. तो वेन एवर देर इज अ कंफ्यूजन वी से शास्त्र प्रमाण है, राइट. गो एंड लुक एट व्हाट द स्क्रिप्चर्स से एंड डू इट. Don't even sometimes listen to your inner voice because you have already killed it. We have conditioned it, we have killed it. Maybe that inner voice is not that inner conscience which is talking to us. So what they are saying is, परमात्मा से अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से वेद, that are our scriptures, scriptures से कर्म करने की विधि, कर्म, from कर्म comes यज्ञ, right? Sacrifice, धर्म, duty, त्याग. That is what is being taught to us. And then from when we are doing our karma like yagna, the environment is conducive, then the rain comes, right? Which is needed. It is a life-giving force. Rain is considered as the life-giving force, and the life-giving force gives us food, and the food is eaten by the living being, right? This is the cycle. And when the living being eats the food, right, and then if you go back again, when the living being does yagna, when he does his karma as yagna, what happens? Now it's a smaller circle that we are forming. पहले हमने वापस करो, परमात्मा से अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ. कैसे हमें कर्म करना है समझ आता है. यज्ञ से वर्षा, वर्षा से खाना, खाना हमें मिलता है तो लिविंग बीइंग. एंड व्हाट डज द लिविंग बीइंग इन टर्न डू? ही डज यज्ञ. He does his actions in the spirit of yagna. When he does his actions in the spirit of yagna, which we have already understood, the environment, life-giving forces become active. And then the food comes. And then again it goes to the living being. Importance of karma as yagna. There is a beautiful story over here. They have given 2-3 stories. Once the knowledge was given, है ना, तो the knowledge of the was given. The, हिंदी का the. तो when gods heard the word the, they realized that gods, they, we say ना, they have a lot of desires. स्वर्ग, देखिए कोई भी साधु महात्मा को आप पूछेंगे ना, they won't say that I want to go to heaven. They will say my journey is beyond, because स्वर्ग में whatever punya you have gathered, you go and you enjoy, right? You are using your card and it is getting swiped again and again. You get everything you want, and then when the balance becomes zero, you are thrown back. मृत्युलोक में आओगे या नीचे जाओगे पता नहीं है. इंद्र के साथ में भी यही होता है. द राजा ऑफ हेवन, उसको भी लात मार के बाहर. इट इज नॉट कॉर्डियल एग्जिट, यू नो, विद अ फेयरवेल पार्टी एंड ऑल. कुछ नहीं, लात मार के निकाला जाता है. आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में दिया जाता है ना, इट डज नॉट मैटर वेदर यू वर्क विद देम फॉर 30 years. दे विल कॉल यू, दे विल टेक योर लैपटॉप, दिस इज द रेड शीट, गेट आउट, है ना, समथिंग लाइक दैट. सो यू आर किक्ड आउट, राइट, इन स्पाइट ऑफ ऑल द सर्विसेज यू हैव गिवन. सो इंद्र भी अगर आप बन गए तो क्या, किसी को इंद्र भी नहीं बनना है, हेवन का राजा भी नहीं बनना है. सो बिकॉज वहां पे क्या होता है, दे वेरी डिजायरस, उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, लग्जरी है, दे आर गेनिंग दिस. कई बार होता है ना, जब कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक साधु महात्मा बोल रहे थे कि जब विघ्न आते हैं ना आपकी तपस्या में, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर डिफिकल्ट कि हम करें कैसे, समय मतलब कुछ तो ऐसी सिचुएशन आ रही कि हो नहीं पा रहा, तो आप ये मान लीजिए कि इंद्र घबरा रहा है. क्योंकि यज्ञ करते हैं ना हम लोग, जब यज्ञ के अनुसार जीने लग जाते हैं या प्रभु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ना, इंद्र घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका सिंहासन डोलने लगता है. उनको डर लगता है कि ये नेक्स्ट इंद्र बन के नहीं आ जाए. तो अपन इंद्र को बोल देते हैं आप परेशान ना करें, क्योंकि हमें स्वर्ग आना ही नहीं है,
हमें तो उसके आगे जाना है। आप शांति से जिए और हमें भी शांति से रहने दें। एक इंसान ने तो बोल दिया था, वो उसके विघ्न हो रहे थे पूजा पाठ में या जो भी हो रहे थे, बोला कि सारे घर वाले इंद्र का ही रूप है, पूजा करने ही नहीं दे रहे हैं, बैठने ही नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़े इंद्र तो मेरे बच्चे हैं। मैं बोल रही हूँ इंद्र भगवान बच्चे बन के आ गए। मतलब मस्ती की बात है, नॉट दैट वी डोंट लव आवर चिल्ड्रन, सब में प्रभु है। अभी तो हमने बोला ना समता, सब में भगवान ही है। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। द का दान हो रहा था। सो व्हेन दे वेंट टू द स्वर्ग लोक, तो उनने द बोला तो उनको समझ आया कि दान, बिकॉज दे यूज टू अक्यूमुलेट, राइट। दान करो, नहीं सॉरी, दमन करो, दमन करो, बिकॉज दे हैड सो मेनी डिजायर्स, दे वर स्वाइपिंग एंड फुलफिलिंग एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो उन्होंने बोला अपने दमन करो, डोंट, मतलब इंद्रियों का दमन, दमन, दमन। सो दे सेड दमन करना चाहिए। देन दे, जो दानव होते हैं ना, द डीमंस, दे हैव दिस अटैक, किल, देयर इज नो compassion in their heart. So when they heard the word they said daya. So we should incorporate daya, 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 daya. And then when they came to the humans, right, human beings, so we have this habit of hoarding. हम लोग करते हैं ना, see on this earth, other than the humans, mostly I think none other living being hoards, or maybe they do, मतलब they'll eat so much and then go on hibernation, पर वो भी उतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते जितना हम करते हैं। तो हमारे को क्या बोला गया, द का अर्थ दान। सो दमन करो, दान करो, दया करो, दमन करो, दान करो, दया करो। सो गॉड्स अंडरस्टूड इट एज दमन, द राक्षसास अंडरस्टूड इट एज दया, एंड द ह्यूमंस अंडरस्टूड इट एज दान। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल दैट व्हेनेवर द रेन इज गोइंग टू कम, राइट, जब हम गड़गड़ाहट सुनते हैं तो आवाज आती है ना, द द द द, when the rain is going to come and the cloud is there, then there is this the that is coming out. Let it remind us of all these three things. दमन करो, दया करो, दान करो, दमन करो, दया करो, दान करो, दमन करो, दया करो, दान करो, and only then what will happen is that life force will be visible to us. नहीं तो नहीं होगा. So over here he says, what beautifully is saying, आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है, right? Isn't it? When we are giving something, there is a त्याग that happens. होता है या नहीं होता? जब हम आहुति भी देते हैं तो त्याग होता है। दान करने में वस्तु का त्याग होता है, आहुति देने में इन सब चीजों का त्याग होता है। तप करने में किस चीज का त्याग होता है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग। हमेशा हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, तप की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं। तो कम टू थिंक ऑफ इट, व्हेन यू आर गिविंग, वस्तु है, यू आर गिविंग इट अगे, तो त्याग किया ना आपने। व्हेन यू आर आहुति भी दी तो आपने घी का त्याग किया, तभी तो अंदर गया ना, यू लेफ्ट इट। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग होता है, नहीं होता क्या? व्हेन वी डिसाइड कि पूर्णिमा है तब हम फास्ट करेंगे, ऐसे ऑल दीज थिंग्स, तो त्याग तो हो ही रहा है, राइट? सो इन सब चीजों का त्याग होता है। एंड व्हाट इज ही सेइंग आगे, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। अगर हम कर्तव्य कर्म को कर्तव्य की तरह जैसे समझाया गया वैसे करें तो ऑफ कोर्स त्याग होगा। किन चीजों का त्याग होगा? हमारे सुख का त्याग होगा, हमारे आराम का त्याग होगा, बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी, पर तभी तो वो यज्ञ बनेगा ना। तो यज्ञ शब्द, यज्ञ जो हम कहते हैं, दान तप आदि संपूर्ण शस्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग, कि जब आप सही तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ त्याग, एंड त्याग इज नेवर वेरी इजी, राइट? सो दे आर नॉट क्लेमिंग इट टू बी वेरी इजी, एंड इट इज समथिंग सो ब्यूटिफुल। हल्का सा हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। व्हाट डज ही सेज, बिकॉज वी आर coming to an end, and let's finish these one more verse. He's saying ek katha, there is a beautiful story, right? And the story was that there was no rain at that time. Now because there was no rain, and why would a farmer go and plow the field and put the seeds when the weather is such that there is no rain?
So what he did was, it's okay. Even if there is no rain, Shrishti is not given any rain, I will do my kartavya. I will go and plow the field. I will put the seeds. So he said, this is my kartavya, I'm going to do it. So he went to the field, he started plowing it, he put the seeds. When he was plowing the field, the peacock saw it. He normally sings when there are like the badals are there, right? जब गनगौर घटाएं छाती है तब the peacock sings. पर he said now he is plowing the field, he is doing his kartavya. कोई बात नहीं, even if there is no rain, I should do my kartavya. And he started voicing. He started singing. And when he started singing, the clouds looked around and then they saw, why is he singing? ऐसे तो कुछ हुआ नहीं कि अभी मैं वर्षा करने वाला हूं या कुछ करने वाला हूं. So when this happened, the clouds also decided to do their kartavya. They said, it's okay. He is plowing, he is singing. I will also do my kartavya. And he also started, कहते हैं ना, गरजने लगे. And then at that time, Indradev looked down, the god of rain. He said, what is happening? How come the clouds are, the voice is coming, the sound is coming without any indication of a rain, without any, जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? But then he realized the farmer is plowing, he's doing his kartavya. The peacock started singing, it's doing its kartavya. This lured the clouds to do their kartavya. And Indradev से तो फिर मैं मेरे कर्तव्य से विमुख कैसे रह सकता हूं? He also did his kartavya and it rained. हम सोचते हैं कि पहले वर्षा होगी तब हम फसल बोएंगे, राइट? उल्टा चल के तो देखिए आप. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लेसन कि what are we waiting for? कर्तव्य कर्म करने से हमें क्या चीज रोक रही है? What are we waiting for? So beautifully he has put it. And it started raining. And that is a simple message. Everything is interconnected. And जब हम अपना कर्म करते हैं ना, जैसे विधि पूर्वक जैसे बता रखा है, परमात्मा हमें सहज ही मिल जाते हैं. We'll get the Lord. Right? इसे कहते हैं the beauty and the सहजता of karma. There's so much more to explain, but again, the simple meaning is, तो फिर क्या करें? परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? We say, right, he is now there is another question that comes. So you're saying he is stated there, but isn't he there everywhere? So why is it that only if we do this that we'll get? Because मतलब तर्क करने के लिए तो हम कोई भी तर्क कर सकते हैं. तो इन्हें बोला, किसी ने पूछा होगा या इनके दिमाग में आया होगा कि this doubt might arise. So what he says is, यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है. Okay, very beautifully, I'll simply explain it here is, water is there in the land, right? Water is there everywhere on land. But we cannot take water out. हमें कुआं चाहिए होता है ना. कुआं खोदेंगे तो जल उसमें से निकलेगा. पर जल तो है ही ना. भूमि में जल है. In the same way, there is water running through a pipeline. But we need that hole, right? We need that tap जिससे वो pipeline से पानी निकले. तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु इज नॉट देयर, प्रभु इज नॉट प्रेजेंट. जैसे भूमि में पानी है वैसे ही प्रभु कण कण में है. पर यू नीड दैट उपलब्धि स्थान, यू नीड दैट स्मॉल लिटिल ओपनिंग फॉर दैट लॉर्ड टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ. एंड वो कर्तव्य कर्म करने से आता है. इट इज सो सिंपली ब्यूटिफुली दे हैव सेड. एंड The last is, again, I told you, right, वो पार्थ संबोधित करके बोल रहे हैं. वर्स नंबर 16, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार, राइट, परमात्मा से प्रज्वलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला होता है. See, this is a सृष्टि चक्र we said. Last time we talked about everything is operating as per yagna, and so we are a part of this entire cycle. So over here in verse number 16 they are saying कि if we don't act like everything else is acting and we decide to be selfish,
Then what do we do? Very beautifully they'll give a simple example and we'll understand it all. इंद्रियों द्वारा भोग में रमण करने वाला, पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है. There is no reason for your life if that karma which is doing is not for the others, and we are living a sinful life and our existence is not needed. बड़ा भय तो क्या भय, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. तेरे होने ना होने का क्या फायदा, नहीं हो इससे अच्छा तो. एंड द एग्जाम्पल दे गिव इज द एग्जाम्पल ऑफ अ चैरियट, राइट. द साइकिल ऑफ नेचर, सृष्टि का एक चक्र है, वेयर एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग टू गिव, देने के लिए, दूसरों के लिए कार्य हो रहा है. पूरा सृष्टि वैसे चल रही है. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द सन टू द मून टू द फ्लावर्स टू द बर्ड्स टू द बी, सब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं. एंड सडनली हम आ गए मनुष्य, एंड हमने विघ्न डाल दिया. हम स्वार्थ के लिए, स्व के लिए काम करने लगे. वी आर वर्किंग फॉर द सेल्फ. तो क्या होगा? नाउ देयर इज अ बिग चैरियट, उस पे सारथी है, एंड देन देयर इज सो मेनी पीपल आर सिटिंग बिहाइंड इट, देयर आर हॉर्सेस एंड ऑल. एंड आप एक बार विजुअलाइज इट दैट व्हेन अ क्रैक ऑन दैट व्हील कम्स, हल्का सा थोड़ी सी व्हील अगर चिप हो जाती है तो व्हाट विल हैपन? The entire chariot will get imbalanced. The people sitting on it get imbalanced. The horses get imbalanced. The sarthi gets imbalanced. Just a little chip on one of the wheels causes the entire imbalance, right? In the same way, right, when we decide not to follow the Shrishti ka chakra, that, that cycle of nature which is operating to give, it is just working to give, and we start going, on the other direction of taking and selfish existence, तब हम पूरी सृष्टि का जो चक्र है ना, उसको imbalance कर देते हैं. No matter how small, we might think कि हम कुछ भी नहीं है, तो भगवान बोल रहे हैं even this much can spoil the entire circle. And there are so many of us, right? So many of us right now. कहते हैं ना, अब कलयुग आ गया. कलयुग आया नहीं, कलयुग को हम लेके आए, और सत्युग आएगा नहीं, सत्युग को भी हमें ही लाना पड़ेगा. कैसे? When we uplift ourselves. When a lot of people uplift themselves, they move from the selfish existence to the selfless existence. Automatically Kalyug will get over and Satyug will come. So the cycle, we have caused whatever agony we are seeing around us because we disrupted the cycle of nature. There is nobody else to be blamed for it, and it is only us who can correct it. हम ही इसको सही कर सकते हैं. Nobody else can do it. Otherwise, Ram Sukdas ji gives beautiful dohas from Kabir Das ji. We will take it later. But he says then, if that is our existence, like कौन चाहता था कि कुंभकर्ण हमेशा जागता रहे? कोई नहीं चाहता था, क्योंकि बस वो खाता था, पीता था, अपनी पूर्ति करता था ना, अपनी इच्छाओं की, अपनी भूख की पूर्ति करता था. So it was better कि he sleeps and stays awake only one day. So it is better for us to sleep then, right? When we are not contributing for the greater good, हम कुंभकर्ण से better नहीं है. It is better for us to sleep. Very blunt. मतलब it is so strong कि आपको समझ नहीं आता है कहाँ देखें. At least मुझे तो नहीं समझ आ रहा है. तो this is what he's saying. And he's saying you are causing the damage to the cycle of nature. And with this, we are going to go into the chanting again next week because we have not chanted much today. But with this, he is telling us, जीवन को यज्ञमय बनाइए प्लीज. आप अपनी ही हानि नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट कॉजिंग हार्म टू योर सेल्फ, यू आर कॉजिंग हार्म टू एवरीथिंग इन दिस सृष्टि, इन दिस क्रिएशन. कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हम गैर जिम्मेदारों की तरह जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हैं. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।